آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 18 ہزاری میں اہل 34 پر لیگی امیدوار ناصر حسین ڈار آگے۔ آزاد امیدوار ریاض احمد کا دوسرا نمبر۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق ناصر حسین ڈار کو 789 ووٹوں کے ساتھ واضح برتری ہے۔ حلقہ اہل 34 جموں 1 کے لیے 18 ہزارے میں قائم 5 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج جاری ہیں۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے امیدوار ناصر حسین ڈار 779 ووٹ حاصل کر کے پہلے نمبر پر رہے۔ آزاد امیدوار ریاض احمد 307 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار عبدالقدیر چوہان صرف 28 ووٹ حاصل کر سکے۔ اہل 34 جموں 1 میں 1229 رجسٹرڈ ووٹرز میں سے 1124 نے ووٹ کاسٹ کیا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ رہنما پیپلز پارٹی سید حسن مرتضیٰ کا کشمیری الیکشن پر تحفظات کا اظہار۔ چنوٹ میں پریس کانفرنس میں کہا کہ ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی، الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی نے انتخابی عمل پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما سید حسن مرتضیٰ نے الزام عائد کیا کہ چکوال میں امیدوار کے کاروباری مراکز سیل کیے گئے اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ متعدد پولنگ سٹیشنز پر پارٹی کے پولنگ ایجنٹس کو مناسب جگہ نہیں دی گئی، جبکہ مسلم لیگ نون کے ووٹرز اور سپورٹرز کو موبائل فون ساتھ لے جانے کی اجازت دی گئی۔ سید حسن مرتضیٰ نے مزید دعویٰ کیا کہ ان کے امیدوار کا نام بیلٹ پیپر پر غلط پرنٹ ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں سبزیوں اور سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ 7 روز میں آلو 7، ادرک 15 اور ٹماٹر 20 روپے کلو سستے ہوئے۔ اروی، سبز مرچ اور شملہ مرچ کے نرخوں میں کمی۔ بینگن، پیاز، پھول گوبھی، ٹینڈے اور مٹر کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ چنوٹ میں ہفتہ بھر میں چکن، انڈوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب پیاز، لہسن چائنا، بینگن، گھیا کدو اور دیسی ٹینڈے مہنگے ہوئے ہیں۔ فیصل آباد میں سبزیوں اور سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ 7 روز کے دوران آلو 7 روپے، ادرک 15 روپے اور ٹماٹر 20 روپے کلو سستے ہوئے۔ اروی، سبز مرچ اور شملہ مرچ کے نرخوں میں کمی ریکارڈ۔ بینگن، پیاز، پھول گوبھی، ٹینڈے اور مٹر کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ آلو کا سرکاری ریٹ 28 روپے، بازار میں 100 روپے کلو فروخت۔ ادرک 330 روپے مقرر، مارکیٹ میں 400 روپے تک میسر۔ اروی کی سرکاری قیمت 65 روپے، گلی محلوں میں 150 روپے کلو فروخت۔ بینگن 150 روپے مقرر، دکانوں پر 150 روپے کلو دستیاب۔ پیاز 150 روپے، پھول گوبھی 180 روپے اور ٹماٹر 300 روپے کلو فروخت۔ ٹینڈے 150 روپے مقرر، مارکیٹ میں 180 روپے دستیاب۔ سبز مرچ 10 روپے سستی، مارکیٹ میں 180 روپے کلو مل رہی۔ کریلے 200 روپے اور شملہ مرچ 350 روپے تک جا پہنچی۔ مٹر 310 روپے مقرر، مارکیٹ میں 350 روپے کلو بکنے لگے۔ چنوٹ میں 7 روز کے دوران چکن، انڈوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ۔ پیاز، لہسن چائنا، بینگن، گھیا کدو اور دیسی ٹینڈے مہنگے ہو گئے، جبکہ ٹماٹر، شملہ مرچ کے نرخوں میں کمی دیکھی گئی۔ پیاز 20 روپے بڑھ کر 115 روپے، مارکیٹ میں 150 روپے کلو فروخت۔ ٹماٹر 15 روپے سستا ہو کر 270 روپے، مارکیٹ میں 350 روپے میسر۔ لہسن چائنا کا سرکاری ریٹ 350، بازار میں 400 روپے دستیاب۔ ادرک 350، آلو 35، سبز مرچ 105 روپے کلو فروخت۔ بینگن 120 روپے، پھول گوبھی 125 روپے کلو بکنے لگی۔ گھیا کدو 110 روپے اور دیسی ٹینڈے 160 روپے میں فروخت۔ لیمو 225 روپے اور شملہ مرچ 30 روپے کلو تک جا پہنچی۔ فیصل آباد کے علاقے عثمان ٹاؤن ملت روڈ میں صبح 7 بجے سے بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ بجلی کی بندی سے روزمرہ امور متاثر، اہل علاقہ مشکلات کا شکار ہے۔ شہریوں کے مطابق متعدد بار شکایات درج کروانے کے باوجود تاحال بجلی بحال نہیں کی گئی ہے۔ عثمان ٹاؤن میں بجلی نہ ہونے سے میت کو غسل دینے میں بھی دشواری کا سامنا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ طویل بندش کے باوجود مسئلے کا حل نہیں نکالا گیا۔ شہریوں کا فیض کو حکام سے فوری نوٹس لے کر بجلی بحال کرنے کا بھی مطالبہ۔ 7 بجے سے بجلی بند ہے، بارہا کوشش کی ہے اور جا کر بھی درخواست کی ہے واپڈا والوں سے کہ خدا کے واسطے چھوٹا سا محلہ ہے، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور پانی تک گھر میں نہیں ہے، واش روم میں جانے کے لیے پانی تک نہیں ہے، میت کو نہلانے کے لیے پانی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اب جنازہ بھی لیٹ ہو گیا ہے۔ ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی، محلے میں فوتگی ہو گئی ہے، محلے میں عورتیں، مرد، بوڑھے بوڑھیاں بے بس کھڑے ہیں، پانی ایک
वॉशरूम में जाने के लिए पानी नहीं है। हमारा जनाजा था मगरिब के बाद का। अब हमने मजबूरन इशा 10 बजे का टाइम रखा है, सिर्फ मैयत को गुस्ल नहीं दिया गया। हमारे मेहमान जौन से हैं वो बाहर बैठे हैं गर्मी के अंदर, सारा निज़ाम दरम बरम हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की बढ़ती कीमतें नामंजूर। जमात इस्लामी की 7 अगस्त को हड़ताल की तैयारियों में तेजी। फैसलाबाद में लोअर्स विंग और ताजिर विंग का मशावरती इजलास पुरअमन एहतजाज के लिए लाहे अमल तय कर लिया गया। इजलास में जमात इस्लामी के जिम्मेदारान ने भरपूर शिरकत की। साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार मियां अनवारुल हक कहते हैं जमात इस्लामी पुरअमन एहतजाज करेगी। मसनूआत और बिजली की बढ़ती कीमतें नामंजूर। जमात इस्लामी की 7 अगस्त को हड़ताल की तैयारियों में तेजी। फैसलाबाद में लायर्स विंग और ताजिर विंग का मशावरती इजलास। साबिक सदर DBA मियां अनवारुल हक की खुसूसी शिरकत। साबिक सदर FCCI राना सिकंदर आजम खान भी शरीक हुए। जमात इस्लामी के जिम्मेदारान ने भी भरपूर शिरकत की। साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार मियां अनवारुल हक का कहना था कि 7 अगस्त को पुरअमन एहतजाज करेंगे। पेट्रोलियम लेवी को फौरी तौर पर कम किया जाए। पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा है और लेवी के लामहदूद इस तरह बोझ जो आवाम पे डाला जा रहा है उसके खिलाफ हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जो 7 अगस्त का ऐलान किया, हम इंशाल्लाह फैसलाबाद में अभी हम ट्रेड यूनियन के साथ भी बैठे हैं, अपने दोस्तों के साथ मशवरा मुशावरत हुई है कि हमने ये कहा है कि इंशाल्लाह ताला पहले की तरह जमात इस्लामी कोई गमला तोड़े बगैर, किसी पत्ते को, किसी पोल को, किसी स्ट्रीट लाइट को नुकसान किए बगैर हम इंशाल्लाह हड़ताल करेंगे, हम धरना देंगे, लोगों के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करेंगे। अजलास में 7 अगस्त को शहर में सड़कों को बंद करने के लिए लाहे अमल तय कर लिया गया। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर राना सिकंदर आजम खान का कहना था कि 26 करोड़ अवाम के लिए हाफिज नईमुर रहमान ने हड़ताल की कॉल दी है। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए जमात इस्लामी पुरअमन एहतजाज करने जा रही है। ये 25 करोड़ लोगों का जो मसला है उसकी आवाज़ बनी है हमेशा जमात इस्लामी और उसके अमीर हाफिज नईमुर रहमान। अब ये कौम पे मुनसर है, अगर वो चाहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो, बिजली की कीमतें कम हो, महंगाई कम हो, और सारी चीज़ें तब कम होगी अगर आप पुरअमन एहतजाज के लिए निकले। हमारा सिर्फ एक स्लोगन है, हमने ये जो नाजायज़ बोझ गवर्नमेंट ने लोगों के ऊपर डाला हुआ उसको कम करवाया। जमात इस्लामी की जानिब से हड़ताल की कॉल के बाद ताजिर तंजीमों से भी मुलाकातों का सिलसिला जारी, ताकि हड़ताल को कामयाब बनाया जा सके। कैमरामैन राना दरीश के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में जमात इस्लामी की जानिब से 7 अगस्त के एहतजाज से मुतालिक आगाही रैली गुलिस्तान कॉलोनी से शुरू होकर चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालिबा। रैली के शुरका ने पेट्रोलियम और बिजली की कीमतों में कमी के मुतालिबात पर मबनी बैनर्स उठा रखे थे। जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग फैसलाबाद के सदर राना सिकंदर आजम की रैली की क़यादत। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए राना सिकंदर आजम का कहना था पेट्रोल पर लेवी टैक्स खत्म और IPPs मुआहदे मनसूख किए जाए। रैली में चौधरी खालिद महमूद, मियां ताहिर अयूब, साजिद कंबो की शिरकत। राना इमरान खालिद, जाहिद इस्लाम और शाकिर अलवी समेत दिगर रहनुमा भी शरीक हुए। हमारी मोटरसाइकिल रैली अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब की अपील पर पेट्रोल की कीमत को कम करने, लेवी बता टैक्स को ख़त्म करने, IPPs की जो गुंडागर्दी है उन मुआहदों को ख़त्म करने, बिजली की कीमत में कमी करने समेत दीगर जो आम आदमी के मसाइल है उस हवाले से उन्होंने 7 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में जो एहतजाजी कॉल दी है कि जिसकी बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की मेन शाहराहों पर लोग, पाकिस्तानी अवाम जो है मोटरसाइकिल गाड़ियों के साथ बैठकर एहतजाज करेंगे, सड़कें बंद करेंगे। 7 अगस्त को जो जमात इस्लामी सड़कें बंद करने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है उसके लिए हम आज लोगों को आगाही दे रहे थे, आओ हमारे साथ मिलकर 7 अगस्त को रोड बंद करें। रोड बंद क्यों करें? इसलिए इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों को जिस नहर पे पहुंचा दिया गया है वो पेट्रोलियम मसनूआत जो पूरी दुनिया में सस्ती हैं तो हमारे पूरी दुनिया सबसे ज़्यादा महंगी हैं। लेवी टैक्स 120 रुपये, सेल टैक्स उसके ऊपर, और ये महंगाई और बिजली के रेट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। अब महंगाई लोगों की सख्त नहीं रही है। आप देखें ये मासूम बच्चे, ये जिनका फ्यूचर है, जिनकी कोई, मैं समझता हूँ कि 20 साल के बाद इस बच्ची का क्या होगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि फैसलाबाद में 4 अगस्त को बाजार बंद होने की अफवाहों के बाद क्लोज बोर्ड की जानिब से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और वाज़ेह किया कि इनकी मुशावरत और बाकायदा ऐलान के बगैर शहर के बाजार बंद नहीं होंगे। ताजिरों से अपील की गई है कि अफवाहों पर कान ना धरें और मामूल के मुताबिक कारोबार जारी रखें।
सदर क्लॉथ बोर्ड सुल्तान भट्ट और चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, जनरल सेक्रेटरी शेख मोहम्मद फैसल, फाइनेंस सेक्रेटरी शेख मोहम्मद एहसन, डिप्टी सेक्रेटरी शेख एहसन, नायब सदर मोहम्मद नबीद रियाज, तनवीर अहमद जट, शेख नईम सलीम, जहूर हुसैन, सुल्तान महमूद राना, शेख खालिद महमूद, शेख अहमद और दिगर की शिरकत। और ताजिर बरादरी से अपील की गई है कि वो गैर मुसद्दिका खबरों पर यकीन न करें और अपना कारोबार मामूल के मुताबिक जारी रखें। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्त सुल्तान बाट साहब सदर क्लॉथ बोर्ड एसोसिएशन और शेख फैसल साहब जनरल सेक्रेटरी क्लॉथ बोर्ड एसोसिएशन, उन्होंने ये बातें वाज़ा कर दी हैं। चूँकि हमें कोई इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक कोई नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आया कि आपने मार्केटें बंद करनी है, लिहाजा हस्बे साबक चूँकि मार्केटें खुलती हैं, इंशाल्लाह मार्केटें खुलेंगी। अगर कोई इंतज़ामिया की तरफ से हमें राब्ता किया गया मार्केटें बंद करने का, तो इंशाल्लाह हम अपने दुकानदारों को दोबारा आगाही देंगे। तब तक के लिए यही मैसेज है कि इंशाल्लाह बाज़ार खुलेगा। 4 तारीख का जो दुकानदारों को हमारे पास मैसेज आ रहा है कि बाज़ार खुला है कि बंद है, लेकिन हम 41 के तरफ से आपको मैसेज दे रहे हैं कि सुबह जो 4 तारीख है, 4 अगस्त को परसों बाज़ार मुकम्मल खुला रहेगा। अगर उसमें हमें कोई पैगाम या हमें कोई बात नज़र आएगी, कोई मैसेज आएगा, फिर हम इंशाल्लाह ताला उसको दोबारा मैसेज देंगे। अगर बाज़ार जब हमने मैसेज ना दिया, फिर इंशाल्लाह ताला 4 अगस्त को बाज़ार खुला रहेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 2 से 3 बातें हैं। 4 अगस्त वाली, जिस दिन कुछ तंजीम नहीं, एक तंजीम ने ऐलान किया है कि मार्केटों में आम तअतील होगी, जिसमें ना उन्होंने किसी से मुशावरत की है और ना ही इसका कोई फ़ायदा आज तक माजी में हुआ है। माजी में 4 अगस्त को कभी मार्केटें बंद हुई ही नहीं है। अगर इंतज़ामिया जो जुलूस का रूट है उसके मुताबिक किसी मार्केटों को बंद करवाती हैं, तो वो 1, 2, 3 घंटे के बाद मार्केटें ओपन हो जाती हैं और अपना काम मामूल के मुताबिक शुरू कर देती हैं। अनफॉर्चुनेटली एक तंजीम ने जो ऐलान किया है उससे सिर्फ हरासमेंट फैली है, उससे और कुछ नहीं हुआ। हमारा इंतज़ामिया से ये पुरज़ोर मुतालबा है कि मार्केटें ओपन करने दी जाएं, क्योंकि मार्केटों में ज़्यादातर किराए के दुकानदार हैं। अगर उनको कोई इस तरह का मामलात है कि मार्केटें बंद करवाएं, वो हमारे साथ बैठें, हम इंशाल्लाह को बीच वाला रास्ता निकालेंगे। मगर कारोबार को एक ऐसा मामला करके, मजहबी कार्ड या कोई ऐसा मामला करके कर देना जिससे दुकानों का कारोबार बिल्कुल तबाह हुआ है, मज़ीद तबाह हो जाए, हम ये इसकी पुरज़ोर तौर पर मजम्मत करते हैं। अगर इसके बावजूद इंतज़ामिया कहेगी तो इंशाल्लाह हम इंतज़ामिया के साथ खड़े हैं। एक बात और भी मैं कर देना चाहता हूँ, मेरी असलम बली साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि मेरी AC सिटी से बात हुई है और उन्होंने बड़े ही पुरइत्माद तरीके से कहा कि गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिशियल की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई कि दुकानें बंद रहेंगी। लिहाजा हम ये कहते हैं कि अपने तौर पर मार्केटें ना बंद करवाई जाएं। अगर इंतज़ामिया को तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमारे साथ बैठें ताकि इसका पुरअमन हल निकले। इंतजामी के अदम तवज्जो के बाद फैसलाबाद में शहरी मसाइल बढ़ने लगे। सतियाना रोड से मुल्हिका फुटपाथ तजावुज़ात माफिया की जद में आ गया। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर में ब्यूटिफिकेशन के काम परेशानियों का सबब बनने लगा। अमीनपुर बाजार में सीवरेज का पानी दुकानों में दाखिल। पहाड़ी ग्राउंड से मुल्हिका ग्रीन बेल्ट तबाहाली का शिकार है। जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर दिखाई देने लगे। फैसलाबाद में सतियाना रोड से मुल्हिका फुटपाथ तजावुज़ात माफिया की जद में आ गया। सड़क पर रेहड़ियों की लंबी लंबी कतारें मौजूद, राहगीरों का गुजरना महाल हो गया। अरसा दराज से रोड और फुटपाथ से तजावुज़ात खत्म न कराई जा सकी। ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया। फैसलाबाद में ब्यूटिफिकेशन के काम पर परेशानियों का सबब। अमीनपुर बाजार में सीवरेज का पानी दुकानों में दाखिल। ताजरों के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया। कहते हैं पानी के बायस लाखों रुपए की किताबें खराब हो गयी। वासा को बार बार शिकायत कर चुके मगर कोई सुनवाई नहीं। इंतजामिया से अपील है कि इस मसले को फौरी हल किया जाए। हमने वासा को भी शिकायत की है और ठेकेदार को भी, इंजीनियर को भी दिखाया है। सारा बेसमेंट के अंदर कल से पानी आ रहा है और हमारे लड़के बेचारे निकाल के बाल्टियों से थक गए हैं और सारा जो सामान हमारा ख़राब हो गया है। लाखों का नुकसान हुआ है। जो फर्नीचर है वो ख़राब हो गया है। यहाँ पर पानी की एक तो निकासी नहीं है। फैसलाबाद पहाड़ी ग्राउंड से मुल्हिका ग्रीन बेल्ट तबाहाली का शिकार। कहीं घास कई फुट ऊंचा तो कहीं नामो निशान तक खत्म हो गया। खुला नाला भी हादसात को दावत देने लगा। इलाका में कई शदीद मुश्किलात में मुब्तला।
शहरियों का मजीद कहना था, जा बजा गंदगी और कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगने से जिंदगी अजीरन बन गई है। आला हुकाम और हल्के के मुंतखब नुमाइंदे फौरी इकदाम उठाएं।